Good morning, students. Welcome again. So the chapter 8, cell, the unit of life is continued. In the previous video, we have learned about the plant cell and animal cell, eukaryotic and prokaryotic cell. So today we will learn about the cell organelles. Cell organelles are present inside the cell in the cytoplasm. We have learnt about the cell. The outermost layer of the plant cell is cell wall, and the cell membrane is inner side of the cell wall. And animal cell does not have cell wall. They have the cell membrane is the outermost layer. Inside the cell wall and cell membrane, the liquid substance is present, is called the cytoplasm. In cytoplasm, many cell organelles are present. In this sequence, the first is endoplasmic reticulum. In short, we can say ER, endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum means सेल के इनसाइड यानी अंदर की तरफ पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स. So the endoplasmic reticulum is scattered in the cytoplasm and around the nucleus. Endoplasmic reticulum are made up of the tubules. So it is known as the skeleton of the cell. क्योंकि जिस तरीके से हमारी बॉडी को स्केलेटन एक शेप देता है और स्ट्रेंथ देता है, उसी तरीके से एनिमल सेल, प्लांट सेल में तो सेल वॉल है जो उसको स्ट्रेंथ या रिजिडिटी देती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, जिसकी वजह से उसका शेप जो है वो इरेगुलर होता है, कैसे भी शेप की हो सकती है. तो इन दिस कंडीशन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गिव द स्ट्रेंथ and shape to the cell. So it is known as the skeleton of the cell. And so endoplasmic reticulum न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है और सेल में और सेल के साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होती है. There are two types of endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum, in short RER, and SER, smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum has the ribosome on its surface. So the surface is rough. The function of RER or rough endoplasmic reticulum to synthesize the protein synthesis, because in its surface the ribosome present, and in previous video we have learned only the single function of ribosome to make a protein synthesis. A smooth endoplasmic reticulum, they does not have ribosome on its surface. इसकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं होते. राइबोसोम कैसे होते हैं? छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के रूप में होते हैं, जिसकी वजह से जब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर चिपके हुए रहते हैं तो सरफेस कैसी हो जाती है? खुरदुरी यानी रफ हो जाती है. लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर की सरफेस पर राइबोसोम नहीं होते, जिसकी वजह से इसकी सरफेस स्मूथ होती है. एंड द फंक्शन ऑफ SER is lipid synthesis and steroid hormone. तो स्टेरॉइड और लिपिड हार्मोन, जबकि RER का क्या है? ये तो है ही लिपिड सिंथेसिस एंड स्टेरॉइड हार्मोन. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है ही, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्योंकि राइबोसोम भी होते हैं तो उनमें प्रोटीन सिंथेसिस भी उनका फंक्शन होता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is made of tube-like structure is called the cisternae. And the formation nucleus, देख रहे हैं, मैंने आपको बताया है न्यूक्लियस के चारों तरफ भी होता है. This is nucleus, nuclear membrane and nuclear core, and this is the endoplasmic reticulum. And this is a rough endoplasmic reticulum because the ribosome present on its surface. Rough endoplasmic reticulum and the smooth endoplasmic reticulum does not have the ribosomes. देखिए ये ग्रीन कलर के जो बने हुए हैं ये क्या है? ग्रेन्यूल्स जैसे, ये राइबोसोम है. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड सिंथेसिस एंड
while the function of rough endoplasmic reticulum is one extra function, the protein synthesis also. The second cell organelle is Golgi apparatus. Golgi apparatus is discovered by the Camillo Golgi in 1898. So the name of Golgi apparatus is after the name of the Camillo Golgi. It consists of many flat dish-shaped sacs and cisternae stacked parallel to each other. ये देख रहे हैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, सिस्टर्नी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये सिस्टर्नी के बने होते हैं और इन द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज इज ऑल्सो द लिपिड फॉर्मेशन. सिस्टर्नी एंड न्यू सिस्टर्नी आर फॉर्म. तो गोल्गी apparatus is the position in the cell. It's upside of the nucleus and every cell has the single Golgi bodies. न्यूक्लियस के ऊपर होता है ये इसकी पोजीशन और ये एक होता है सेल में. Golgi apparatus performs the function of packaging of material and its transportation. जो भी लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोप्रोटीन जिनका भी सिंथेसिस होता है ये उनको ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन करते हैं. अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी apparatus. देख रहे हैं जो भी प्रोटीन, राइबोसोम का फंक्शन एक ही है प्रोटीन सिंथेसिस, तो उसके में भी ये हेल्प करता है. गोल्गी apparatus इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन. ग्लाइकोजन का भी फॉर्मेशन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का राइबोसोम की वजह से होता है, तो दोनों मिलकर क्या बन गए ग्लाइकोप्रोटीन. एंड ग्लाइकोलिपिड, लिपिड प्लस ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन इज अ कार्बोहाइड्रेट. लाइसोसोम. द थर्ड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज लाइसोसोम. Lysosomes are a membrane-bound vascular structure formed by the process of packaging of the Golgi apparatus. जो लाइसोसोम है वो गोल्जी apparatus से ही बनते हैं. और लाइसोसोम जिसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं, इन अर्लियर क्लासेस, क्लास 9th you have learnt about the lysosome and the lysosome is known as the suicidal bag because after some time it destroys itself and the cell in which the lysosome present. They are rich in hydrolytic enzyme. There are 40 types of enzymes are present in the lysosome. Lysosome एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो सिंगल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर एक लिक्विड है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है. अबाउट 40 टाइप्स के एंजाइम है जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं. तो दिस इज द लाइपेज प्रोटीएज कार्बोहाइड्रेट्स एक्टिव एज एसिडिक पीएच. एसिडिक पीएच आप जानते ही हैं जो 7 से पहले होता है, 0 to 6 एसिडिक है, 7 पे न्यूट्रल होता है और 8 ऑनवर्ड्स जो है वो बेसिक होता है. तो इन एसिडिक पीएच पे होते हैं और इनमें ये एंजाइम होते हैं. लाइपेज जो लिपिड को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीएज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है. तो द मेन फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम इज डाइजेशन. These enzymes are capable of digesting carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid. Nucleic acid means DNA and RNA. तो ये इसका काम ही डाइजेस्ट करना है. देखिए जब भी सेल के अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे हो जाते हैं और ये उसको डाइजेस्ट करता है, लेकिन जब एंजाइम्स की कैपेबिलिटी कम हो जाती है और सब्सटेंस जिन पर उसे वर्क करना है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो जब उसकी कैपेबिलिटी कम हो जाती है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में लाइसोसोम डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके अंदर के सारे जो भी पॉइजनस या वेस्ट प्रोडक्ट है वो पूरी सेल में स्प्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस सेल की भी डेथ हो जाती है. तो इसलिए कहते हैं कि लाइसोसोम जिस सेल के अंदर है उसे खुद वो अपने आप खत्म कर देता है. तो इट इज नॉन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. लाइसोसोम, the structure of lysosome, this is the cell membrane
surrounded by the structure and the bag-like structure. There are many enzymes present inside the lysosome. एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, 40 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं लगभग, और ये प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स और जो है लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने का फंक्शन है। वैक्यूल are the membrane bound space found in cytoplasm containing water sac and excretory product. Like vacuoles जो हमने पीछे पढ़ा, difference between plant cell and animal cell. Vacuoles are present in animal, does not present in animal cell, but they are very large and more in number present in plant cell. तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल है, क्योंकि वैक्यूल का फंक्शन है एक्सक्रिएटरी या जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, पॉइजन सब्सटेंस बन रहे हैं, उसे सेल से बाहर करना। तो इसके लिए एनिमल सेल में तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है, लेकिन प्लांट सेल में नहीं होता। तो प्लांट सेल में एक्सक्रिएशन का काम वैक्यूल्स करती हैं। तो वैक्यूल्स द एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट, इसके अंदर जो वाटर होता है, वाटर सेप एंड एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल एंड फॉर्म द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, आगे सिंगल मेम्ब्रेन का, तो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। They form contractile vacuole and food vacuole in many organisms. जो single celled organism है, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, उनमें फूड वैक्यूल होती है जो फूड को डाइजेस्ट करती है, क्योंकि जो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। तो फूड वैक्यूल ही फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती है और एक्सक्रिएशन का काम भी वैक्यूल ही करती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल is covered by the single membrane is called the टोनोप्लास्ट। जो इसकी मेम्ब्रेन है बाहर, उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन है इसकी, और सेल शेप है। इसके अंदर लिक्विड होता है जिसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, वाटर होते हैं। जैसे ही इसके अंदर सब्सटेंस आते हैं, वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के पास जाती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, वो हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर करने में हेल्प करती है। तो ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट को सेल वॉल के थ्रू और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के थ्रू प्लांट से बाहर कर देते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन न्यू वीडियो, द माइटोकॉन्ड्रिया, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।